or go for a meeting, I meet anyone, the first things they say is like, I've been trending in 3 countries for the right reasons: Pakistan, UAE and India. मैंने जो गलती की है मैंने उसके लिए माफी मांगी है. I even did the punishment and I accepted that I was wrong. So firstly, Zeeshan, welcome to IWMBuzz. Your journey of lockup was full of a roller coaster ride. क्या बोलना चाहोगे अपने journey के बारे में? First of all, हाँ, like you said, roller coaster ride रहा है, and a very bumpy roller coaster ride. So keeping it short, I would like to thank everyone who came out in my support, who understood my side of the story even before I could tell it. So yeah, with the amount of love, with the amount of support I've gotten, it far outweighs the hate that has come my way. I cannot thank you guys enough. Even like every time I get down also to get the food for iftari, or go for a meeting, I meet anyone, the first things they say is like, you know what, we totally stand by you. What you did to Azma was right. I was like, no, bro, it's not right. You're like, no, we understand that it was a little extreme. But then for 2 weeks, if anyone, I wouldn't have lasted 2 days if someone was continuously saying that. The only reason we support you is that we have been seeing this, that you've been taking this for 2 weeks, and that is why we support you. I was like, thank you so much, man. I really appreciate it. So the love and support, obviously they're not telling me that, yeah, go ahead, that was good, you should have, beat the hell out of her. No, they know that I had a moment of weakness. They know it before I can even tell them. But then also they understand that, dude, I've been taking this for 2 weeks. A normal person cannot take it for 2 minutes. I've taken it for 2 weeks. So I would just like to thank them and give them all my love. I cannot thank them enough. My heart is full. Zeeshan, जैसे कि आपने कहा कि there was a two-side story, जहाँ एक तरफ Azma was provoking you, दूसरी तरफ ये भी था कि no, you got out of your mind and you just hit it up. लेकिन your audience is divided by two sides now. One who is supporting Azma and one who is supporting you. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? Because audience is supporting you, but there is one audience who is not agree with your point of view, who is not supporting you at all. They are like, no, how you can beat a woman, how you can go against a woman. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? See, first of all, the woman card, we live in 2022, and that is why I've been trending in 3 countries for the right reasons: Pakistan, UAE, and India. So if I'm trending in 3 countries for the right reasons, with support, with the hashtags bring back Z, justice for Zeeshan, there are people who see things, right? एक होता है कि आप क्योंकि आपको वो दिमाग में डाला गया है कि women card and this and that. Again, what I'm saying is, I know my reaction was a little extreme, but I did not beat her. I pushed her away. All right, and I still say that even that is not acceptable. I apologize for it. I'm sorry. I even did the punishment for it. In no way was I saying that it's something right that I did. But having said that, if you're telling me that I raised my hands on a woman, being a woman, you were talking utter bullshit about 2 other women. 2 of the most important women in my life who aren't there to defend themselves. One, I'm spending the rest of my life with. The other one has given birth to me. Being a woman, you cannot say, is it okay for you to talk such cheap things about another woman, that my girlfriend is sleeping around with producers and directors to get work for me? When I go out, I'm going to find my parents dead. You're saying such a thing when my mom is already not well. I cried in the Munawar episode and I told everyone that, this is what I have also seen. You're saying that to me, then you're telling me कि तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप के पास आके पैर में गिर के उनके पैर छू के भीख मांगते हैं for खाना. Are you freaking kidding me? I took this for 2 weeks.
I've cried alone. I've put myself out of the situation. Everything. I've done everything possible. But when the attacks were personal on me, when I was called a terrorist, when I was told, you are like this, तू भीखे मांगता है and this and that, मैंने सब ले लिया because वो attacks मेरे पे थे. The only time I reacted after 2 weeks, after listening to this on a constant loop of 2 weeks, is I stood up for those two women who weren't there to defend themselves. तो आप मुझे ये वुमेन कार्ड या ये फेक फेमिनिज्म का एंगल मत दो. मैंने जो गलती की है मैंने उसके लिए माफी मांगी है. I even did the punishment and I accepted that I was wrong. But don't you dare put that feminism angle on me because I stood up for two women who weren't there to defend themselves. अपने लिए नहीं खड़ा हुआ था मैं. तो ये please, we live in a world of equality, not women's superiority. So all the people who, and I'm so glad that जैसा आपने कहा कि audience divided है. Audience अगर divided है तो more than 90% of the audience understands what I'm saying and already understood what my side of the story was before I could even come and tell it. Uh, the 7-8% of people who don't understand it, I hope you also understand this. And if you guys don't understand this, put yourself in my shoes and see. अगर कोई आपके माँ बाप, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ के बारे में आके कंटिन्यूसली इतनी चीजें बोलता, रियल वर्ल्ड में ना आप 4 से 5 बार सुन लेते, छठी बार पे ना आप भी रिएक्ट करते. जब प्रिंस को भी युविका के बारे में बोला गया था 2 बार में प्रिंस वाज लाइक, मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा, पर्सनल मत जा, मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी, मेरी वाइफ को बीच में मत ला. तो एनी नॉर्मल पर्सन है ना, एक 4 से 5 बार सुन लेगा, उसके बाद तो रिएक्ट करेगा ही. मैं 2 हफ्ते से सुनता आ रहा हूँ. वो 2 हफ्तों को ना दिनों में ब्रेक करो, घंटों में ब्रेक करो, मिनटों में ब्रेक करो और देखो कि सुबह उठते के साथ से लेकर रात को सोने तक मैं ये लूप पे सुनता आया हूँ 2 हफ्ते और रोया हूँ और किसी ने कुछ नहीं किया. एंड आई डोंट ब्लेम द मेकर्स फॉर इट बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, उनका काम है ये टॉक्सिसिटी बाहर लाना और बताना, लोगों के सामने रखना कि देखो ये पर्सन इतना गिर सकता है. पर जिसको मैं ब्लेम करता हूँ आर द सो कॉल्ड मदर फिगर्स, सिस्टर फिगर्स एंड फ्रेंड्स जो आसमा के बने थे. मैं उनको आके बोलता था, जो पायल, शिवम, केवी, मैं इनको बोलता था यार इज इट एक्सेप्टेबल. मैंने पायल को ये भी बोला कि जब संग्राम पे कोई कुछ बोलता है, यू तेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है, हाउ कैन यू ब्रिंग संग्राम, ही इज नॉट ओवर हियर, हाउ इज शी ब्रिंगिंग माय पेरेंट्स एंड माय गर्लफ्रेंड सेइंग सच चीप थिंग्स, इज दैट फेयर. नहीं, पर वो तो अब हम क्या बोले, अब वो तो तुम लोग का है. तो तभी किसी को रोकना नहीं था. जब चीजें इतनी एक्सट्रीम हो गई तब तुमने कहा कि अरे नहीं नहीं आसमा मत करो, फिर नहीं वो तो सुनती नहीं है हमारी. सो इट्स इट्स वेरी कन्वीनियंट. तो ये प्लीज मेरे साथ विमेन But कार्ड मत Ishan, दो. have you tried to speak with the spokesperson जब आपके साथ इतना कुछ हो रहा था? आपने ट्राई किया कि आप मेकर से या किसी से भी बात कर सके जब आप लॉकअप में थे, जब आसमा was not stopping her limits? आपने कभी ट्राई किया कि एक बार मेकर से बात किया जाए, क्योंकि आसमा ने अपनी लाइन तो क्रॉस कर दी थी उनके साइड से. यार मैं मेकर्स से बात करके क्या करूं. उन्हें सब दिख रहा है. मैं जब रोता था और मैं बोलता था अकेले भी और मुनावर के साथ भी कि the amount of things she's saying, the amount of dirty things, the amount of cheap things that she's saying, मैं क्या करूं यार. कोई इसको रोक क्यों नहीं रहा है, कोई इसको रोक क्यों नहीं रहा है. मैं रोता था. तो ये तो सभी देख रहे हैं इंक्लूडिंग मेकर्स. जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई रोक क्यों नहीं रहा है, तो इसमें मैं मेकर्स को पर्सनली जाके क्या ही कहूँ. दे आर वॉचिंग इट बट देन ऑब्वियसली दे विल लेट इट हैपन बिकॉज दे विल, उनका काम ही है एक पर्सन की ये टॉक्सिसिटी बाहर लाना एंड लोगों के सामने पेश करना. तो वो करेंगे ही. इसलिए तो आई कैन नॉट एंड आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल. अगर ये शो नहीं होता और अगर ये कैमरास ऑन नहीं होते तो मेकर्स क्या, कोई भी पर्सन यार, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग मेकर्स आर आल्सो ह्यूमन ओनली.
कोई भी पर्सन अगर ये सुनता और इतनी चीजें सुनता, पहले पकड़ के बोलता कि आसमा क्या कर रही है, देखो तमीज नहीं सिखाई है किसी ने. इज दिस व्हाट यू हैव बीन टॉट? इज दिस हाउ यू बीन टॉट टू टॉक? हम्म, तो सो आई डोंट ब्लेम, ऑब्वियसली वो भी उनका शो है. या उनका शो का काम ही है टू ब्रिंग दिस पार्ट आउट. तो मैं उनको ब्लेम करके क्या करूं? ओके. सो जिशान, जैसे कि आपने कहा कि आसमा वाज नॉट स्टॉपिंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने से कुछ ना कुछ बोलती रहती थी. हमने ये भी देखा कि आपने स्टार्टिंग में उनके मेकअप्स को किया, नो मेकअप्स खराब करने की कोशिश की, लेकिन जब वो झाड़ू वाली बात आई तब किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाकी कंटेस्टेंट आपको प्रोवोक कर रहे थे वो चीज करने के लिए. डू यू फील कि कंटेस्टेंट्स भी आपके बहाने वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे आसमा पे? अ, अगर आप क्लिप्स देखो तो मेरे को किसी ने प्रोवोक नहीं किया था वो करने के लिए. जब मैंने मेकअप भी, एंड लाइक यू वेरी वेल सेड, जब ये स्टार्ट भी हुआ था, मैंने मेकअप तक उसको रखा था. उससे मेरा प्रोटीन फेंका, मैंने उसका मेकअप फेंक दिया, एंड एवरीथिंग वाज गुड. The only time when all of this went out of hand is even after all of that, she was continuously going on my parents, continuously going on my girlfriend. आप कितना सुन के लोगे यार? 2 हफ्ते तक सुन के. और तभी तभी भी जब वो प्रवोक कर रही है, उसको किसने रोका? पायल ने आके रोका? शिवम ने आके रोका? केवी ने आके रोका? नहीं. इनफैक्ट प्रिंस, मुनावर, ये लोग सब जा जाके बोल रहे थे आसमा पर्सनल मत हो, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड. पायल और ये लोग सब तो एनकरेज कर रहे थे. मेरे को किसी ने एनकरेज नहीं किया. आई हैड अ मोमेंट ऑफ वीकनेस. आई हैड, यार आई एम ऑल्सो ह्यूमन. आई हैड अ ब्रेकिंग पॉइंट. 2 हफ्ते जब लोग 5 से 6 बार तक सुन के रिएक्ट कर देते हैं, मैं तो 2 हफ्ते कंटिन्यूसली सुन रहा था. कितने होता है, 600 बार एटलीस्ट मैंने सुन लिया होगा, फिर मैंने रिएक्ट किया है. बट तो यूजिंग आसमा द को ब्रूम इज नॉट द राइट, जिशान. एंड नो, जो जिस तरह से आपने टॉवल निकाला, वो विजुअली इट वाज टू हर्टिंग फॉर एनीवन टू सी दैट. यू वो नो एक नो, एग्जैक्टली. भले एंड देयर इज अनदर रीजन, वो एक अलग स्टोरी है बिहाइंड, बट जो नजर आया है, जो ऑडियंस ने देखा है, वो काफी ही बुरी तरह से इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए स्पेशली. नो. that's what I'm saying. Did I say that was right? I या. apologize for it. I apologize for it. और बट मैं अभी आफ्टर भी अपोलोजाइज, आपने जब करण कुंदा ने बोला था तब आपने बोला कि फक ऑफ, दैट वाज नॉट अ गुड एट दैट टाइम आल्सो. करण कुंद्रा ने कहा था फक ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं अपोलोजाइज कर रहा था, इफ यू हैव सीन द फुटेज प्रॉपर्ली, जब मैं उठक बैठक कर रहा था, सबसे जी. पहली बात तो विदाउट हेजिटेशन मैं आया और उठक बैठक करने के लिए रेडी या. हुआ. जब मैं या. उठक बैठक कर भी रहा था, दे वर मॉकिंग मी. हम्म. एक एक पर्सन अगर अपोलोजाइज कर रहा है, आप उसको तभी भी प्रोवोक कर रहे हो. आप उसको तभी भी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग हिज अपॉलजी, यू आर मेकिंग फन ऑफ हिम कि हाँ हाँ, और झुक, और नीचे जा. ये सब हम्म. कमेंट्स आ रहे थे. आई एम श्योर आपने देखा तो होगा वो. जी. राइट. जी. राइट. सो इवन आफ्टर दैट आई डिड नॉट से एनीथिंग. जब मैं आया वहां पे स्टेज पे, वो पोडियम पे, अगेन आफ्टर दैट दे वर मॉकिंग माय अपॉलजी. हम्म. पायल, शिवम, all of these guys. हाँ हाँ, चल चल, 5 फीट की दूरी, and this and that, and then Asma also started. That is या. when I did it for all of them. हम्म. You know, fuck you guys, because I even apologized with, and I did it without a word. तुम लोग ने तभी भी मॉक किया, तुम लोग अभी भी मेरी अपॉलजी को मॉक कर रहे हो. मतलब तुम लोग कितने गिर सकते हो? So that, if obviously divided opinion हो सकता है, but people who are smart and sensible have seen that हम्म. it was for the provocation after the apology as well. कि मैंने apologize किया, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हो, एक apology का. जी. कितना गिर सकते हो? अगले दिन सुबह जब मैं उठा तभी भी मुझे चीजें कही जा रही थी. So you know what? I'll tell you what, एक और चीज मैं बोलता हूँ कि एक एक लड़की पे your kids here. या, इज माय नेफ्यू. Oh, your nephew. या. So एक 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 और चीज होती है, जब एक एक लड़की के ऊपर
एक मेंटल अब्यूज, एक वर्बल अब्यूज की बात आती है, तो हम लोग उसको एड्रेस करते हैं कि ये कैसे हुआ, हाउ कैन समवन मेंटली एंड वर्बली अब्यूज अ गर्ल, सो व्हाट अबाउट अ गाय। एक लड़के को 2 हफ्ते क्या, मैं तो 3 हफ्ते बोलूंगा, क्योंकि पहले हफ्ते तो टेररिस्ट वाला टॉपिक छेड़ा गया था मेरे साथ, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते पर्सनल हुई है, तो 3 हफ्तों से अगर मैं मेंटली अब्यूज हो रहा हूँ, वर्बली अब्यूज हो रहा हूँ, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ, कितना एक आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? मैंने अगर गलती की ना, मैंने वो गलती को मानी, मैंने वो गलती की पनिशमेंट ली। अगर मेरे को उसके बाद 200 और स्क्वाट्स करने बोल देते, 200 टिल द एंड ऑफ द गेम मेरे को बोल देते काला पानी में रहो या सॉलिटरी में रहो, मैं ले लेता, क्योंकि मैंने ना अपनी गलती एक्सेप्ट की, मैंने उसके लिए अपोलोजाइज किया, उसका पनिशमेंट भी लिया। जब मेरे को टेररिस्ट कहा गया था, मेरे को ना अपॉलजी मिली, ना anyone from my religion got an apology. जब मेरे साथ लोग फिजिकल हुए, I did not get any apology. But इन सभी लोगों को एक चांस मिला। Payal had the lowest votes that day when she called me a terrorist. Yeah. What happened? She was still in the show. Nisha, who had more votes and deserved to stay, was removed. So where was the apology? Where was the justice and all of that? तो अगर आप ये मुझे कह रहे हो कि बट हाँ आपको ये झाड़ू का नहीं करना चाहिए था, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे वो झाड़ू वाला नहीं करना चाहिए था, मुझे वो धक्का नहीं मारना चाहिए था, टावल नहीं खींचना चाहिए था, आई शुड हैव डन एनी ऑफ दैट एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट। बट अगर एक पर्सन, प्रिंस एग्जाम्पल है, 2 बार उसे कहा गया था युविका के बारे में, वो कितना गुस्सा हो गया था। आप अपने आप को ना मेरे शूज में रखो, और अगर आप ये 3 हफ्ते तक झेल सकते हो ना, तो फिर प्लीज आके मेरे से बात करना। मैंने 3 हफ्ते झेले, 3 मिनट, 30 मिनट या 3 घंटे भी कोई झेल नहीं पाएगा। मैंने 3 हफ्ते। जीशान, अगर देखा जाए आजमा वॉज ऑल्सो रॉन्ग, डू यू फील कि आजमा के लिए भी कुछ एक्शन होना चाहिए अभी के लिए, बिकॉज अभी तक हमने कोई देखा नहीं एक्शन हुआ है। क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे मेकर्स को या कुछ कहेंगे कि आजमा को भी इक्वल ही पनिशमेंट मिला जाए? यार मैं मेकर्स को कुछ नहीं कहूँगा, वो तो अपना शो देख रहे हैं। ऑब्वियसली they are also human, they also feel bad, they also this thing, but then for them the show is important. So if a person is going to these levels, obviously उनको तो चाहिए कि भाई ये person और गिरे शो में, ताकि लोगों के सामने इसकी असलियत आए। Of course I wish कि आसमा के खिलाफ भी एक एक्शन, बिकॉज जब आसमा ने भी ये सब चीजें बोली, I did not get any apology from आसमा for this. और जहाँ तक बात आई कि ये जो फेमिनिज्म एंड दिस एंड दैट, मैं भी ना 2 लड़कियों के लिए खड़ा हुआ था, अपने लिए नहीं खड़ा हुआ था, तो प्लीज ये विमेन एंगल मेरे पे ना ही लगाया जाए तो बेटर है। दूसरा, मेरे फैंस, because they understood this and all of this, one of my fans only brought it to my notice and I had put a story up yesterday for him. He said कि अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि इस पे ये केस लगाओ, वो केस लगाओ, how can he do this, तो एक काम करो, जाके IPC section 504 पढ़ो, then you'll know who is wrong and who is right. And I was like, because मेरे को खुद को नहीं पता थी, मैंने फट से जाके मैंने देखा कि what is this, section 504 से कि आप अगर intentionally insult कर रहे हो किसी को with provocation and the motive of breaking peace of an individual or personal abuse is a punishable act. तो ये तो 2 हफ्ते से 2 हफ्ते क्या छोड़ो, 3 हफ्ते से होता आ रहा है। अगर ये भी एक ऑफेंस है, why didn't anyone do anything about it? हाँ, आप लोगों की आंखें अब खुली। By legally also, will you try to go legally for the asthma? I honestly don't want to go legally with asthma and this and that. लोगों ने देख लिया है सब, मेरे को ये legally जाके ये करके वो करके, neither do I have the time for this tamasha. Neither do I have the brain capacity for this, because I have better things to do.
Alhamdulillah, I have more work to do, so I will do that. Yeah. लोगों ने अगर लोगों ने मेरे सपोर्ट में आए हैं तो they have seen the kind of person I am, and I am not that person. Everyone has one moment of weakness. लोग, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी गलती करता हूँ. तो people know how I am as a person. मेरी एक गलती अगर हुई है, मेरे फैंस जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने भी कहा है कि यू नो आप थोड़े से एक्सट्रीम चले गए, बट वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आपने हेजिटेट नहीं किया, आपने अपोलोजाइज किया, एंड वी सॉ दैट इट वाज हार्टफेल्ट. आपने रात को भी अपने दीवार पे जो वो बॉक्स बना के लिखा, आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू गाइज, हमने वो देखा है. भले ही वो आधी रात को हुआ है, भले ही सब सो रहे थे, हमने वो देखा है कि आपकी हार्टफेल्ट थी. So that is the reason why we stand with you, and the reason we don't stand with Azma is because we have been seeing you being tortured for 3 weeks and you haven't even got an apology for it. Lastly, Zeeshan, I want to know कि क्या आपको लगता है आज़मा ने आपका बिग बॉस OTT देखा था, जिस तरह से आप वहाँ पे ट्रिगर होते थे, और उसी तरह ही उसने सेम गेम प्लान आपके साथ किया है, वहाँ से ही उसने एक पॉइंट पकड़ लिया आपका और वही ट्रिगरनेस उसने यहाँ पे करने की कोशिश की है? वो उसका गेम प्लान नहीं था, वो पायल का गेम प्लान था. Because before that, Asma was not going personal. After Payal and Asma became friends is when Asma started going personal. Like I said, कि अगर आप एक सिस्टर फिगर, एक मदर फिगर बन रहे हो और आप अगर अपनी बहन या अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो, I pity you and I pity the people you teach, or you know. Anyways, इसके आगे तो मेरे को बोलना नहीं है, नहीं तो मेरे पास बहुत चीज है. जी. Zeeshan, thank you for giving your precious time, and thank you for clearing all the doubts about all the things that is spread around about you. Thank you so much, and all the best for your upcoming projects. Thank you so much. That was so nice talking to you. My pleasure. Thank you, and all the best. Thank you so much.